آج ہم نے آپ کو ایک نئی جگہ پہ زحمت دی ہے. یہ ریلوے گراؤنڈ ہے اور یہاں کوئی کل کے ہمارے جلسے سے پہلے میری یادداشت میں نہیں ہے کہ یہاں کوئی سیاسی جلسہ ہوا ہو. مختلف اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، بازار لگتے رہتے ہیں، لیکن سیاسی سرگرمی یہاں اس حوالے سے اتنے بڑے جلسے کی صورت میں ہوئی نہیں پہلے کبھی. ہم نے نشتر پارک میں جلسہ طے کیا تھا، اس کا اعلان بھی کیا، لیکن جب باقاعدہ اجازت نامے کے لیے ہم نے وہ اپنا مرحلہ شروع کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ 30 نومبر کی تاریخ میں نشتر پارک کسی اور تنظیم کو اس کی اجازت مل چکی ہے. تو ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہم کسی اور تنظیم کو دی گئی اجازت کو منسوخ کرنے کے لیے جائیں یا اسے ایسی سرگرمی میں جائیں جو شاید ناگوار بھی گزرتی تھی دوستوں کو. ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ ہم جلسے کا کہ مقام جو ہے وہ تبدیل کر دیں، اور پھر ہم نے اس جگہ کا انتخاب کیا. پاکستان پیپلز پارٹی آپ سب کے علم میں ہے 1967 میں قائم ہوئی 30 نومبر کو لاہور میں، اور آج ہم 2024 میں پارٹی کا 57واں یوم تاسیس منا رہے ہیں. ان 57 برسوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے کڑے امتحان، آزمائشیں، مشکلات دیکھی ہیں شاید وہ پاکستان میں کسی اور سیاسی جماعت نے نہیں دیکھی ہوگی. دعوے تو بہت کر سکتے ہیں، آج کل بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن کسی سیاسی جماعت کی قیادتوں کو شہادتیں نہیں ملی، کسی جماعت کے کارکنوں نے پھانسیاں نہیں کھائیں، کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو کوڑے نہیں لگے، کسی سیاسی جماعت کے کارکن عمر قید کی سزائیں نہیں بھگتی، اور اس قسم کی بے شمار ظالمانہ سزائیں تھیں جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کی پاداش میں جو ہے وہ برداشت کی. اس ملک میں 1967 سے لے کے 2024 تک جتنے فوجی عامر آئے، پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں نے ان کے خلاف جدوجہد کی، ملک میں جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد کی. ہماری قیادت شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، ان سب نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جس نظریے اور سوچ کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی بنائی گئی تھی اس نظریے اور سوچ کو آگے بڑھایا جائے. اور آج 57 برسوں کے بعد بھی میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی جماعت پیپلز پارٹی کے پائے کی جماعت نہیں ہے. جتنے باشعور سیاسی کارکن پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کو ملیں گے، کسی اور جگہ اتنی سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے کارکن آپ کو نہیں نظر آئیں گے. آج بھی ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز پیپلز پارٹی سے کیا. اور ان جماعتوں میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے وہ لوگ ہیں جن کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کی کڑی آپ کو پیپلز پارٹی سے ملتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ ایک ایسی جماعت یا ایسی سیاسی نرسری ہے جس نے پاکستان میں سیاسی شعور کو آگے بڑھایا اور لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے یہ کام کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کے بعد کئی دنوں کے اس ملک میں چل رہا ہے وہ اس ملک کی سیاست کو عام لوگوں تک پہنچانا تھا. اس ملک کی سیاست شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست میں آنے سے پہلے، پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام سے پہلے صرف جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں، مخدوموں، پیروں کی ڈرائنگ رومز ہوتی تھی، اور وہاں فیصلے ہوتے تھے کہ کس کو الیکشن میں لڑنا ہے، کس کو جیتنا ہے، کس کو کہاں جانا ہے.
पीपल्स पार्टी के क़याम के बाद आज तक बड़े बड़े लोग, बड़े मखदूम, बड़े जागीरदार, बड़े सरमायादार जो आम जिंदगी में शायद इस मुल्क के आम गरीब से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते होंगे, इलेक्शन के दिनों में उसके दरवाजे पे जाते हैं, उसके साथ ज़मीन पर बैठते हैं और उससे वोट के तलबदार होते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम है। इसके अलावा इस मुल्क में जो डेवलपमेंट हुई है इन 57 बरसों में, उसमें जो तारीखी काम है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत में जो हमारी हुकूमत रही, हमारे नसीब में आए। इस मुल्क में आइन, मुत्तफ़िक़ा आइन अगर किसी ने दिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। उस आइन को जब आमिरों ने मस्क किया तो दोबारा इस आइन को बहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। इस मुल्क में सूबों को जिस खुदमुख्तारी का दावा 1940 में करारदाद पाकिस्तान में किया गया था, उस पर अमल दरामद 18वीं तरमीम की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मैं आपको गिनवा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा लातादार ऐसे कारनामे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमने इस मुल्क के अवाम के लिए, लोगों के लिए किए हैं। और आज भी इन तमाम क्राइसिस के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद कि पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिशें जितनी फौजी आमिरों ने की, पीपल्स पार्टी आज भी कायम व दायम है और आज भी पाकिस्तान की सियासत में उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 1967 में। तो ये इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजबूत ऐसी सियासी जमात है जिसकी बुनियादें इस मुल्क के अंदर बहुत गहरी हैं और इस मुल्क के लोगों में बहुत गहरी है। आज भी अगर आप किसी गरीब से, किसी किसान से, किसी खातून से, किसी अक़लियत के हमारे भाई से, किसी भी ऐसे तबके से जिसके हुकूक वो समझता है कि इस मुल्क में उसको नहीं मिल रहे, और अगर आपसे पूछें कैसे मिलेंगे तो आपको पीपल्स पार्टी का नाम लेगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम लेगा, आसिफ अली ज़रदारी का नाम लेगा, या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद करेगा कि इनके अदवार में क्या क्या कुछ इनके लिए किया गया है। हमने, अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की दिल खोल कर खिदमत की, जो हमारी जिम्मेदारी बनती थी, शायद उससे ज़्यादा हमारी क़यादत ने कुर्बानियाँ पेश की हैं। और यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग उसी तरह चाहते हैं। और कल जब 30 नवंबर को हम यहाँ होंगे, उस वक्त पाकिस्तान भर में लातादाद मकामात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस की तकारीब मुनक़िद हो रही होंगी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वीडियो लिंक के ज़रिए एक वक्त में उन तमाम जो इज्तिमात हो रहे होंगे उनसे वो खिताब कर रहे होंगे। हमारा जो कल का ये इज्तिमा है, इसमें ज़ाहिर तकारीर होंगी, फिर चेयरमैन साहब की तकरीर होगी, उसके बाद हमने यौम तासीस की खुशी में आतिशबाजी का प्रोग्राम रखा है और उसके बाद हमने पार्टी के तराने और कुछ और सिंगर्स को बुलाया ताकि हम एक जश्न मनाएं, और एक म्यूज़िकल इवेंट भी हमने रखा है ताकि हमारे कारकुन हम मिलकर यहाँ पर पार्टी की यौम तासीस को सेलिब्रेट करें। वकार भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि बात करना। जैसा आपको सेक्रेटरी साहब ने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना 57वां यौम तासीस जो है वो कल पूरे मुल्क में इंतहाई जोश व खरोश के साथ मना रही है। और ये 30 नवंबर के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़े इज्तिमा करती रही है। इससे कबल कोयटा में हमारा यौम तासीस का एक जलसा हुआ था। इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने यह तय किया कि वो पाकिस्तान के तमाम अजला में जिनकी तादाद 150 से ज़ायद बनती है, उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए वो खिताब करेंगे। और ये सिर्फ वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब ही नहीं है, बल्कि ये बड़े भरपूर जलसे आम मुनक़िद किए जा रहे हैं तमाम अजला के अंदर। कराची में जीवना सतह पे ये तकरीब यहाँ मुनक़िद हो रही है। बाकी तमाम पूरे बाकी सिंध के तमाम अजला, पंजाब के तमाम अजला, KPK के तमाम अजला, बलूचिस्तान के तमाम अजला, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, इन सब जगह डिस्ट्रिक्ट सतह पे ये तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं इसमें शरीक होंगे। इससे कबल पार्टी के मरकज़ी कायदीन उस जलसों से खिताब भी करेंगे और 6:15 बजे ठीक चेयरमैन साहब वीडियो लिंक के ज़रिए अपना खिताब शुरू करेंगे, क्योंकि के हवाले से भी
انتہائی اہم ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لمبی فہرست ہے اور ایک عظیم جو اس کی قربانیاں، شہادتیں، جدوجہد، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا جدوجہد کی ہے اس کی ملک کی تاریخ کی نہیں بلکہ اگر آپ دنیا کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑی اس طرح کی جدوجہد آپ کو نہیں ملے گی. کہ تمام عملیتوں کا جس میں ایوب خان سے لے کے جنرل مشرف تک کی عملیتیں اس کا مقابلہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. اس کے خلاف جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. اور آج ہمارے شہداء کی قربانیوں کی بدولت یہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک تناور درخت بن چکی ہے جس کی قیادت آج بلال بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کل بھی جو یہاں جلسہ ہوگا وہ بھی عظیم الشان ہوگا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے اجتماعات بالخصوص کراچی میں ہوئے ہیں اس میں بھرپور طور پہ پارٹی کارکنان کے علاوہ پارٹی کے چاہنے والے کراچی کے عوام نے بھرپور شرکت کی ہے اور یہ پارٹی کی مقبولیت کا ثبوت بھی ہے. تو انشاءاللہ کل بھی پورے پاکستان کے اندر جو اجتماعات ہوں گے وہ بھی عظیم الشان جلسے عام کی شکل میں ہوں گے. بھائی جی سیاسی صورتحال کیونکہ آپ ماشاءاللہ سیاست میں بڑی اچھی بات کرتے ہیں اور پی ٹی آئی پر آپ کی شاید پی ایچ ڈی بھی ہے، تو یہ بحیثیت سیاسی کارکن، سیاسی رہنما، اور آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جدوجہد کی بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری بھی ایک قافلہ اسلام آباد کی طرف لے کر گئے تھے اور وہ پی ٹی آئی کا دوست تھا. تب یہ مناظر دیکھنے کو نہیں ملے تھے جو ابھی ہمیں 2 دن پہلے دیکھنے کو ملے ہیں. تو یہ بحیثیت سیاسی جماعت پیپلز پارٹی واقعات کی مذمت کرے گی. کل کو یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور جماعت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میں صرف ایک چیز آپ کو یاد کرا دوں. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی شہر سے ہی اس تاریخی لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا تو انہوں نے ایک بات کہی تھی جو شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگی لیکن اس وقت کسی کو بھول گئی ہو. انہوں نے کہا کہ ہم اس حکومت کو جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے کراچی سے اسلام آباد تک مارچ کریں گے اور اسلام آباد پہنچ کر ہم اپنی اس حکومت ہٹاؤ تحریک کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے. اور پھر یہی ہوا. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں سے اسلام آباد پہنچے، پرامن طور پر وہ مارچ ختم ہوا اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کرنے کی ہم نے جدوجہد کی. اگر تو پی ٹی آئی یہ کہہ کر جاتی کہ ہم جائیں گے، مظاہرہ کریں گے، احتجاج کریں گے اور واپس آ جائیں گے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. لیکن اگر کوئی جماعت یہ کہہ کر احتجاج شروع کرے کہ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں اور ہم عمران خان کو جیل سے آزاد کر کے لائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدامنی کرنا چاہتے ہیں، آپ جیل پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ جیل توڑنا چاہتے ہیں، آپ قانون کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں. تو بطور سیاسی کارکن ہم سب ظاہر اس بات کے بڑے حامی ہیں کہ پرامن احتجاج کرنا سب کا حق ہے، سب کو کرنا چاہیے. لیکن اس احتجاج کی آڑ میں اگر کوئی انتشار پھیلانا چاہے، دہشت گردی کرنا چاہے، لا قانونیت پھیلانا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی پھر کچھ نہ کچھ جو ہے اس بات کا انتظام ہونا چاہیے کہ اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. دوسری ایک بات، ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں نا جی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، تو اگر آپ دیکھیں نا آئین میں جہاں لکھا ہوتا ہے نا کہ آپ کو یہ کام کرنے کی اجازت ہے تو آگے لکھا ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو دی لا، قانون کے مطابق. تو اگر کوئی قانون کچھ کہتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، تو وہ ان لمیٹڈ آزادی کہیں بھی کسی کو نہیں ہوتی ہے کہ میں یہ کہوں جی مجھے احتجاج کرنے کی آزادی اور احتجاج کی آڑ میں کسی گھر میں گھسوں. نہیں، مجھے احتجاج کرنے کی آزادی ہے وہاں تک جہاں کسی اور کے جو آئینی، قانونی، انسانی حقوق ہے وہ پامال نہ ہو. جہاں میں وہ پامال کروں گا میرے اختیارات جو ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے کہ جس انداز میں انہوں نے اپنی احتجاجی مہم چلائی ہے اور جس انداز میں ماضی میں انہوں نے 2-3 واقعات کیے ہیں اسلام آباد میں ہی، اس کی بنا پر ان کے ہر احتجاج پر یہ تشویش ہوتی ہے، پوری قوم کو تشویش ہوتی ہے. ہم کراچی بیٹھے ہوتے ہیں، میں آپ کو بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں، یہ سوچ رہے ہوں گے اسلام آباد جائیں گے پتہ نہیں کیا تباہی پھیلائیں گے. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب جا رہے تھے تو آپ کے ذہن میں یہ قطعاً نہیں ہوگا کہ وہ جائیں گے وہ تباہی پھیلائیں گے. آپ کو پتا تھا کہ وہ جائیں گے، احتجاج کریں گے، ختم کریں گے، اس کے بعد پارلیمنٹ میں جا کر اپنا
जो भी हुकूमत को हटाने का तरीका था उसको इख्तियार करेंगे। जी गवर्नर राज के हवाले से बातें निर्देश कर रही है केपीके में कि गवर्नर राज लगा दे जाए, 2-3 दफा वो आ चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, और आपके पॉलिसी बयान इस हवाले से क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इस वक्त पार्टी के बिहाफ पे पॉलिसी बयान देने की पोजीशन में नहीं हूँ, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात की मुखालफत में रही है कि ये जो आईनी इख्तियारी सही गवर्नर रूल जो है वो आइन के अंदर एक प्रोविजन मौजूद ज़रूर है, लेकिन ये इंतहाई सूरत हाल के अंदर जो है वो लगना चाहिए। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमें जितनी कोशिश करनी चाहिए इससे बचने की कोशिश करें। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देखें कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, अगर किसी सूबे में कोई हुकूमत आती है, लोग उसको मुंतखब करते हैं, तो इसलिए तो मुंतखब नहीं करते हैं कि आप जाके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करें, इसलिए तो मुंतखब नहीं करते हैं कि आप हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल करें, हुकूमत के मुलाजमीन को इस्तेमाल करें, हुकूमत की गाड़ियों को इस्तेमाल करें और पुलिस के महकमे के जो हथियार हैं उसको इस्तेमाल करें, उनके आंसू के शेल को इस्तेमाल करें, उनके और जो इक्विपमेंट उसको इस्तेमाल करें और जाके किसी और सूबे, किसी और या कैपिटल के ऊपर जाके हमलावर हो जाए। ये बहुत संगीन सूरत हाल है और ये मुझे याद नहीं पड़ता माजी में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई हो। पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी इख्तलाफात रहे हैं, पंजाब में उनकी हुकूमत होती थी, वफाक में हमारी हुकूमत होती थी, लेकिन ऐसे तमाशे आपने नहीं देखे होंगे। तो अगर तो कोई सूबाई हुकूमत खुद अपने सूबे में जो बदअमनी हो रही है, जहाँ 50 से ज़्यादा बेगुनाह मासूम शहरी एक शहर के अंदर मारे जाते हैं फायरिंग में, उस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है और तवज्जो इस बात पे है कि मैं किस तरह इस्लामाबाद जाऊँ, हमलावर हो जाऊँ और वहाँ से अपने लीडर को छुड़ा के ले आऊँ। तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बात ज़रूर कहीं ना कहीं सोच में आती होगी, इस पर गौर किया जाता होगा कि क्या इस तरह कोई सूबाई हुकूमत चल सकती है या नहीं चल सकती है। ये बताइएगा कि हैसियत सियासी कारकुन के इस सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा कि जब से ये धरना खत्म हुआ है, ये जैसे हुआ है, उसके बाद पीटीआई में इंतशार की बातें आ रही है, इस्तीफा धड़ाधड़ आ रहे और बुशरा बीबी और बाकी पार्टी रहनुमाओं के सोशल मीडिया पे बयानात भी आ रहे हैं। क्या इस धरने का यही नतीजा निकलना था या इमरान खान की जेल में होने की वजह से सब कुछ हुआ है? नहीं, इमरान खान जब बाहर था तभी आता। देखिए, इंतशार तो इस जमात में था, है और रहेगा और शायद बढ़ेगा। उसकी बुनियादी वजह, क्योंकि आपने मुझसे बतौर सियासी कारकुन सवाल किया है, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान किसी तौर पर भी सियासी आदमी नहीं है। जिस दिन उसको सियासत की, बहुत तरह से कहता हूँ, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का एक माजी है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का माजी है। इमरान खान की सियासत में मुझे कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। जमात होगी, लोग होंगे, चलते रहेंगे। ये अगर यही तर्ज अमल होगा तो ऐसे ही चलेगा। बाकी जो जबान जो सुना है हमने आपके चैनल्स के जरिए, जो उनकी जोजा मोहतरमा ने इस्तेमाल की है, उन लोगों के खिलाफ जो उनकी पार्टी के MNAs हैं, MPAs हैं, अहदेदारान हैं, मैं समझता हूँ कि ये मैं PTI से नहीं हूँ, मुझे बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन मुझे रहम आता है उन लोगों के ऊपर जिनके मुतल्लिक इमरान खान नहीं कह रहा, उसकी बीवी कह रही है तुम बेशरम हो, तुम बेगैरत हो, तुम गिद्ध हो। मुझे तो ऐसे उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ती है जिन लोगों ने बैठकर ये बातें सुनी, अल्फाज सुने। जब ये रवैये होंगे, इन रवैयों के साथ सियासी जमातें नहीं चलती हैं। सिर्फ अवामी मकबूलियत की जोम में आप होंगे जी बस अवाम की मकबूलियत है, हम जो मर्जी करते फिर, नहीं चलता। अगर किसी सियासी जमात के साथ अवाम खड़ी होती है तो क़यादत को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि इस मकबूलियत को, इस अवामी सपोर्ट को कैसे संभालेंगे, हमें कैसे चलाना है आगे। मैं हमेशा बात कहता हूँ कि यार आपका अपना घर आपकी अपनी ख्वाहिशात और मर्जी पे नहीं चलता। 5-6-7 लोगों की फैमिली भी, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं इतनी बड़ी जमात जो इस तरह अपनी ख्वाहिश और मर्जी पे चलाऊंगा, या जो वज़ीर आज़म थे तो चाहते थे पूरा मुल्क अपनी मर्जी और ख्वाहिश पे चलाऊंगा, तो चलता नहीं। आपको अपनी सोच, अपने रवैये, अपनी हदर्मी जो है उसमें चेंज लानी पड़ेगी। आप जिस जमात की बात कर रहे हैं, जमात पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, बस पार्टी का क्या मौक़िफ़ है?
मैं फिर ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो ज़ाहिर है भी पार्टी इस पर बात करेगी, उसके बाद फैसला आएगा। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, जिस तरह गवर्नर रूप में मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सियासी आज़ादियों पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं रही, खिलाफ रहे हैं उसके। दूसरी बात, जब पिछले इलेक्शन में इनके पास इनका निशान नहीं था, इनकी जमात का नाम नहीं था, तब भी पीटीआई नहीं थी, लेकिन इलेक्शन लड़ा उन्होंने, फिर भी उनको वोट पड़े, कुछ लोग जीते, कुछ भी हुआ। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाबंदी लगाने से शायद कोई मसले का हल निकलेगा। तो मुझे नहीं पता हुकूमत क्या फैसला करती है, लेकिन मेरी राय में पाबंदी लगाने से जो मसाइल हैं उसका हल कोई नहीं होगा। देखिए, जिस अंदाज में पीटीआई को आज भी मुख्तलिफ अदालतों से रिलीफ मिलता है, उससे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। फिर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में उस वक्त से लेके आज तक जो जो कुछ उन्होंने इस मुल्क में किया है सियासी आज़ादी की आड़ में, और फिर उस गंद मचाने के नतीजे में जो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और शायद कोशिश भी की गई, लेकिन हर बार वो बच जाते हैं। कहीं ना कहीं से आज भी शायद ये महसूस होता है कि लाडला कहीं ना कहीं लाडला है ज़रूर। या तो जो आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि डोमिसाइल का फ़र्क है, मतलब सच्ची बात है। ये जो कुछ देखें पीटीआई की, केपीके की हुकूमत कर रही है या पीटीआई की जमात कर रही है, अब तसव्वुर कर ले इस मुल्क की भी छोड़ दें, सूबा सिंध की कोई जमात, बलोचिस्तान की कोई जमात, या मैं कह दूं कि केपीके के कुछ ऐसे सियासी रहनुमा जो शायद नापसंदीदा है वो कर रहे होते तो उनके साथ क्या होता। इतनी आज़ादी आज भी इन तमाम चीज़ों के बावजूद जितनी पीटीआई को हासिल है, शायद किसी और जमात को आज भी हासिल नहीं। सीसीआई से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सीसीआई के इजलास में गवर्नर उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जाहिर है वो डिस्कशन में अगर कहीं आएगी तो मुझे नहीं पता था कि पार्टी का उसूली या कहते हैं उसको ऑफिशियल स्टांस इस पे क्या होगा, वो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन बतौर कारकुन मैं आपको कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हर उस अमल को नापसंद करती है जिससे सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगती हो या जिससे कोई आइनी बहरान या मजीद पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा होने का अंदेशा हो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, वफाक और सूबाई मामला किस नहज पर है इस वक्त? क्योंकि या तो आपको 6 केनाल वाला मामला अभी तक हल हो रहा है, 6 केनाल जो पंजाब निकालने जा रहा है, जिनको से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। उसके अलावा वफाकी बजट रिलीज नहीं हो रहा जिसके लिए जो तरक्याती बड़े बड़े मंसूबे रखे गए, इस हवाले से क्या तवक्कुआत है और ये ताल्लुकात कहाँ जाके खत्म होंगे या बढ़ेंगे, क्या होगा? देखें, अगर आप इसका मवाजना करेंगे जब पीटीआई की वफाकी हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी तो उसके मुकाबले में तो बहुत फ़र्क है, बहुत बेहतरी है। लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिस पे हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इन इश्यूज़ को प्रॉपर तरीके से और भरपूर तरीके से उठा रही है। जहाँ तक इन कैनाल्स की बात आप कर रहे हैं, मुतनाज़ा जो 6 कैनाल्स की बात है, सिंध असम्बली ने अभी तक ये इशू इतना पब्लिक में आया भी नहीं था। सिंध असम्बली ने इस पे बड़ी तफसील से बात भी की और करारदाद भी मंजूर की, जिस पे हमने कहा कि ये हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। अच्छा, इसमें जो पॉलिटिकल आपके एंगल्स होते हैं उससे हटके भी देखिए, सिंध हुकूमत में जो लोग बैठे हैं, जो सिंध असम्बली में नुमाइंदे बैठे हैं, उनको सिंध के लोगों ने मुंतखब करके भेजा है। किसी जमात से उनका ताल्लुक, उनकी पहली जिम्मेदारी ये है कि वो अपने सूबे के लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करें। और हम इस चीज़ से बिल्कुल भी गाफिल नहीं हैं। हम भरपूर तरीके से अब भी कर रहे हैं
लेकिन जाहिर है कि पहले इतना बंदूक उठा के गोलियां तो नहीं मारेगी किसी को। हमने प्रॉपर तरीके से चीज़ें जो है आगे रखी हैं, आगे बढ़ी हैं। और ये तो एक तो चीज़ है ना, आपने सवाल किया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन हुकूमत का ये काम नहीं होता कि वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और असम्बली में बात करते हैं। हुकूमत जो है मुख्तलिफ फोरम्स पर आइनी और कानूनी तरीके से उन इशूज़ को रेज करती है, उनको उठाती है, उस पर बात करती है। हम वो भी कर रहे हैं। और ये जब एकनेक में ये मसला आया था, सिंध हुकूमत ने उस पर भी एतराज़ात उठाए थे। एकनेक ने इसको मंजूर तो किया, लेकिन कंडीशनल मंजूर किया कि सिंध हुकूमत के एतराज़ात जो हैं उनके साथ उन्होंने लगा के भेजा और कहा कि CCI में रखे। हमने CCI को भी लिखा और उसके पीछे जो हमारे दलाइल हैं वो बड़े वैलिड हैं, बड़े मुस्तनद दलाइल हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब इस पर बात होगी CCI में, तो मैं ये इस वक्त किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहता हूँ। वफाकी हुकूमत भी जब हमारा मौक़िफ़ सुनेगी तो यकीनी तौर पर जो है हमारे मौक़िफ़ के ज़रिए हम उसको कायल कर देंगे। देखिए, मेरे पास अभी उन पेपर्स की कॉपियाँ नहीं हैं। एक तो हमने लिखे हैं, उसमें हमने बहुत सारे हवाले दिए हैं, लेकिन एक कोई डिस्कशन वफाकी हुकूमत की सतह पे भी हुआ जिसमें जो मुतल्लिका इदारे हैं जो ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को देते हैं, उन्होंने भी इन कैनाल्स की मुखालफत की हुई है। तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जिस पर हम, जो मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ बात होगी किसी भी फोरम पे, मुझे यकीन है कि हम अपने दलाइल के ज़रिए उनको कायल कर लेंगे।